everyone, I am Justina Perez and I'll be discussing this week's most important topic. तो आपको पता ही होगा कि केरला has passed a resolution to change its name to Kerala. तो हम डिस्कस करेंगे can states change their name and how do they change their name. Let us understand the whole procedure. क्या केरला के पहले कोई स्टेट्स ने नेम चेंज किया है? बिल्कुल किया है। इस मैप में आप देख सकते हो, जैसे हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड पहले नाम था उत्तरांचल, ये नेम चेंज हुआ 2007 में। एंड फ्यू इयर्स लेटर ओडिशा, तो पहला नाम है इसका ओडिशा, ओडिशा बना ओडिशा कौन से साल में? 2011। And now we see this is the second time in the year that it has passed the resolution to change the name of the state, that is from Kerala to Keralam. Apart from that, अगर हम दूसरे states की बात करें, कोई क्या ऐसे दूसरा state है that wants to change their name? Yes, we also have West Bengal. West Bengal change करना चाहता है बांग्ला. Okay, so we're going to see with regard to how is the process or what is the procedure to change the name of the state. वैसे बहुत सारी cities का नाम भी बदला है ना? जैसे कि अगर हम देखें, बॉम्बे became मुंबई, और in the recent times अगर हम बात करें इलाहाबाद, right, इलाहाबाद becomes प्रयागराज। तो ऐसे करके हम देखते हैं बहुत सारे cities का नेम चेंज हुआ। And we are also going to have a small view with regard to ये कैसे हो सकता है, क्या इसके लिए भी अलग प्रोसीजर है, ये भी हम देख लेते हैं आज के डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। The first aspect that we have in the news today is the major context that Kerala wants to change its name to केरलम। केरला चेंज करना चाहता है केरलम। Why does it want to change to केरलम भी हम देखेंगे इस सेशन में। पहले समझते हैं कि क्या प्रोसेस है टू चेंज द नेम। यहाँ पे we see कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी को पावर देता है टू चेंज द नेम। Who has the power to change the name of the state? This is to the parliament. It is given to the parliament to change the name of the state. तो कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 states that the procedure to alter the area, अगर आपको एरिया चेंज करना है, उसके बाउंड्रीज चेंज करने हैं स्टेट के, या स्टेट का नेम ही चेंज करना है, ये सब कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है? आर्टिकल 3। और ये जो प्रोसीजर है कि नेम ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ स्टेट, ये दो असेंबलीज, अगर स्टेट असेंबली से पास हो सकता है या पार्लियामेंट से पास हो सकता है। तो अगर फर्स्टली पार्लियामेंट डिसाइड्स कि कोई स्टेट का नेम उनको चेंज करना है, तो पार्लियामेंट हैज टू गेट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। It has to get the recommendation of the president. So this is when the parliament has decided to change the name of a state. And the second is जब states खुद change करना चाहते हैं अपना name, तो ये क्या करते हैं? They pass a resolution in the state assembly. ये state legislative assembly में ये resolution pass करते हैं। इसके बाद क्या होता है? So either parliament or state legislative assembly can mainly start the process to change the name. Final power we have with the parliament. यहाँ पे हम देखते हैं the provision, अगर parliament, ठीक है, parliament decide करता है कि name change करना है, okay, what does it require? The recommendation of the president. Apart from this we see that parliament को ये बिल जो उन्होंने पास किया है, ये उनको स्टेट असेंबली में देना पड़ेगा। पार्लियामेंट को बिल स्टेट असेंबली में देना पड़ेगा। तो स्टेट के पास जब बिल आता है, बिकॉज उनका अफेक्ट होता है, उनका जो पावर्स है, उनके जो नेम स्टेट है वो अफेक्ट होता है, सो दे विल हैव द पावर। सो विच state has been changed, the name of the state has been changed, उसके पास वो बिल आता है, and within a time frame, ठीक है, उनको एक टाइम फ्रेम मिलता है with regard to the bill, एक specified time period होता है, जिसके बाद वो कुछ opinions with regard to the change of name जो पार्लियामेंट में सोचा है, ये ओपिनियन दे सकता है किसको? वापस से पार्लियामेंट के पास।
Okay, so let's understand once again. Parliament decides to change the name. Parliament first needs to get the recommendation of the president, followed by which we see the bill is passed to the state. And within a time frame, उनको opinion देना पड़ेगा. Okay, changes कर सकते हैं, वो opinion रख सकते हैं, and ये bill वापस से किसके पास जाता है? Parliament के पास. So is the parliament bound to accept the opinion of the state? State ने जो भी changes मांगे हैं, क्या वो उनको enforceable होते हैं या क्या लागू होते हैं? The answer is no. Parliament can decide to take the opinion or it can also reject the opinion. ठीक है? So parliament can take the opinion or it can reject the opinion. And we know जब भी ये majority है, कौन से majority में होता है? It is the simple majority. Okay, it is the simple majority से pass होता है. Apart from this, अगर ये जो इंस्टेंस है फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, नाउ ये क्या है? पहले अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन नेवर टॉक्ड अबाउट पार्लियामेंट से बिल जाता है स्टेट. ये जो प्रोसेस हमने बताया है, पार्लियामेंट सेंडिंग द बिल टू द स्टेट फॉर चेंजिंग द नेम, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया था. बट in the 5th Constitutional Amendment Act of 1955, we added this process or we added the procedure कि जो भी Parliament बताना चाहता है the name of state, that has to go to the state for taking its opinion. जो भी affect होता है, कि state affect होता है, उसको ये bill पास होना चाहिए, is what the 5th Amendment Act says of 1955. Right? After this, after ये bill pass होता है back to the parliament, right, with the change of name, what is the process? The process is president देता है अपना assent, president के पास जाता है for the approval. President अगर approval देता है, then it becomes a law and finally the name of the state is modified. तो अगर हम केरला की बात करें, हम देखते हैं कि केरला के असेंबली ने, सो द बिल स्टार्टेड इन केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, ये पार्लियामेंट से नहीं आया, केरला चाहती है, तो वापस से केरला को ये जो रिकमेंडेशन है, केरला अभी पार्लियामेंट को दे रही है. Now Parliament has the final say to then give it to the President, pass it by majority, and then pass it to the President for approval. ठीक है, तो हमने दोनों इंस्टेंसेस देख लिए हैं. नाउ आफ्टर दिस देयर इज ऑल्सो सम स्मॉल प्रोसीजर, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस करने हैं, राइट. रेलवेज मिनिस्ट्री में जो स्टेशन है ये चेंज होना है. वी हैव इंटेलिजेंस ब्यूरो में रिकॉर्ड्स होते हैं, पोस्ट सर्वे, सब कुछ जो नेम चेंज, उनके डॉक्यूमेंटेशन में नेम चेंज होता है. सो देयरफॉर वी रिक्वायर अ सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट का नाम है दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी. तो एनओसी किस किस डिपार्टमेंट से लेते हैं? एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. ये सबसे क्या लेना पड़ेगा? एनओसी. एनओसी किसके पास जाएगा? एनओसी जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के पास. ठीक है, तो क्या है, एनओसी चाहिए. बहुत सारी एजेंसी, एनओसी जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास. और जब एमएचए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये कंसेंट देता है, then we find that the resolution is passed by the state. Okay, mainly then we have the proper name change that is also there. So these are the other institutions also involved in the process. Similar अगर हम बात करें the name of change of the cities, right? State का तो हमने बात कर लिया, लेकिन city बॉम्बे टू मुंबई और इलाहाबाद टू प्रयागराज, यहाँ पे क्या process होता है? So यहाँ पे remember the process of renaming states of course is with the parliament, final approval है parliament का. लेकिन अगर हम सिटीज की बात करते हैं तो ये टास्क जाता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास. जो पावर है, यू हैव द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट हैव द पावर, लेकिन उनको वैसा ही कंसेंट लेना पड़ेगा. They will of course require the consent from the Ministry of Home Affairs. They need to check ना कि ये कोई similar names तो नहीं आ रहा,
ताकि कंफ्यूजन अवॉइड करे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी देती है टू चेक कि ऐसे कोई दूसरा सिटी तो नहीं है इस नाम से, है ना, तो ये सब भी चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद वी हैव द नेम ऑफ द चेंज ऑफ द सिटी। सो वी हैव सीन both the processes only take about the simple majority when you pass the resolution. Proceeding, why does Kerala want to name the state as Keralam? Kerala is an English word, whereas Keralam is a Malayali word for Kerala. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मलयाली में इसको केरलम कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको केरला कहते हैं। और इसका अर्लीस्ट मेंशन अगर हम एटिमोलॉजी या हम अगर हिस्ट्री को देखें तो ये हम देखते हैं एम्परर अशोका। एम्परर अशोका कौन से साम्राज्य या कौन से डायनेस्टी कहते हैं? ही वॉज फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी, राइट? And who is the founder of Maurya dynasty? That you are going to tell me in the chat box. Who is the founder? क्योंकि ऐसे ही passages आएंगे, अगर अशोका का नाम आया होगा तो मौर्य से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। So ऐसे related questions भी हम बता सकते हैं। So यहाँ पे you have to tell me who is the founder of the Maurya dynasty. अशोका is part of the Maurya dynasty और उनके रॉक एडिक्स में, उनके जो inscriptions में ये बताया गया है क्या? It is mentioning about केरला पुत्र, ठीक है, एक जिक्र किया है केरला पुत्र, which means the son of Kerala. It means son of Kerala. Okay. Apart from that, so it is saying कि north region में ये जो king थे उनको पता था about the South India. We know some names that are there. So it is an ancient name that we're talking about when it comes to Kerala. एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि चेरास का मेंशन किया है। इट रिफर्स टू द डायनेस्टी ऑफ द चेरास। तो अशोका ने कहा कि साउथ इंडिया में कुछ चेरा या केरला पुत्र है। तो ये चेरा अगर हम बात करें, लेट्स टेक द साउथ इंडिया मैप, ठीक है। साउथ इंडिया में केरला अभी कहाँ पे है? इस रीजन में है। तो साउथ जो अर्लीस्ट हिस्ट्री की बात करें वो है संगम पीरियड, ठीक है। संगम पीरियड की अगर हम बात करें, दैट वेंट अबाउट 300 BC से लेके 300 AD, 300 BC से 300 AD। तो ये जो रीजन है यहां पे एक डायनेस्टी रूल करती थी। डायनेस्टी का नाम है चेरा। ओके, 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आते हैं संगम पीरियड में। कौन है ये? चोला, चेरा, पांड्या। तो चेरा है अभी का जो केरला कहां पे है वहां पे रूल कर रही थी। फिर आता है पांड्या, लाइक दिस मोस्ट ऑफ द तमिलनाडु रीजन, पांड्या। एंड पांड्या के जस्ट ऊपर ही वी ऑल्सो हैव द चोलास, ठीक है। सो दीज 3 डायनेस्टीज वर रूलिंग इन साउथ इंडिया। तो चेरा जो है, it is said that the dynasty was referred to as the Kerala Putra or the son of Kerala, ठीक है। तो earliest instances of the information of Kerala we have because of the edicts of Emperor Ashoka। अगर हम देखते हैं कि केरला कैसे स्टेट बना वो भी हम देख सकते हैं, या कब बना, लेट अस अंडरस्टैंड द होल हिस्ट्री। तो यहाँ पे द डिमांड फॉर मलयाली स्पीकिंग बेस्ड ऑन द लैंग्वेज वी सी इट स्टार्टेड 1920 से। 1920s में दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज मलयालम। यहाँ पे हम देखते हैं soon after the integration, there was integration of which 2 princely states, that is Travancore, Cochin and Malabar। Malabar जो district है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के में आता था। So they wanted these 3 regions to integrate because they all 3 are Malayali speaking, right? Apart from this, अगर हम देखें 1949 में soon after independence, ये जो Travancore और Cochin है ये इनका इंटीग्रेशन हुआ। ये 2 स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ, इसीलिए हम इनको कहते हैं स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर कोचिन। दे कॉल इट स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर कोचिन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट द डिमांड फॉर मलयाली स्पीकिंग स्टेट वाज स्टिल इंटैक्ट, राइट। अभी भी पूरा मलयाली स्पीकिंग स्टेट इंटैक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव मद्रास प्रेसिडेंसी में, दैट इज तमिलनाडु। अगर हम बात करें अभी उसी रीजन में थोड़ा मलयाली स्पीकिंग पोर्शन भी है, तो द डिमांड वाज स्टिल ऑन। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स 1950s में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वर फाइटिंग फॉर गेटिंग द स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। एंड उसी के कारण 1953 में गवर्नमेंट सेट अप द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। इसका चेयरमैन कौन थे? अगेन अ गुड फैक्ट फॉर यू टू रिमेंबर, सैयद फजल अली कमीशन। सैयद फजल अली, he was a retired chief justice and he was heading the commission of the state reorganization commission। तो
तो इन्होंने, इनकी जो कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था 1955 में, saying this state का formation होना चाहिए based on the linguistic lines, and therefore he also said कि Malabar also should be a part of Travancore Cochin, and with regard to even the तालुक of कासरगोड, ठीक है, ये सब आना चाहिए with regard to केरला. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और रीजन्स थे, कुछ और रीजन तालुक्स थे, जैसे तोवाला, अगस्तीवरम, कालकुलम, ठीक है, ये सब जो है ये तमिलनाडु के पास होने चाहिए, मीन्स एक्सक्लूडेड दीज तालुक्स, okay, for not having the same language, they had more similarity with the Tamil Nadu region. तो इसी के कारण we see November 1st 1956 the Kerala comes into, the state Kerala comes into being. ये जो एक्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये पास कब हुआ था? इट वॉज पास्ड ऑन 31st August 1956 और इसका एनेक्टमेंट हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956, एंड दैट इज व्हाई वी अंडरस्टैंड द केरला एज अ स्टेट वाज फॉर्म्ड लाइक वी सी इन द प्रेजेंट टाइम्स. ठीक है, सो दिस इज विद रिगार्ड टू, हमने हिस्ट्री समझा, हमने केरला क्यों नाम पड़ा, केरलम से हम कैसे they are finding it common, we have seen all of that. That's all with regard to the topic. Not before ending the question of the week. हमने देखा है Kerala has been in the news this week for one more such reason, and that is of course a very good news. Because a state in Kerala, a city in Kerala has been identified or has been declared as India's first city of literature. यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर. कौन सा सिटी है केरला में, ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.